Bad governance is more risky than the woes of the civil war. And this can be seen in the case of Sri Lanka. The lands of Sri Lanka have always been in anguish. It's just that till a few years ago, the cries of people were divided between Sinhalese and Tamils, and now they are just cries. Only noises of impoverished citizens who have not a grain to eat, not a drop to drink, and inflation has drowned the island completely. तो और विलंब नहीं करते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी, मिस्टर संस्कार सिहोरिया, who will be giving the 78 GSTS talk on a struggling island, Sri Lanka. Thank you so much, Archana. Indira Gandhi said, and I quote, "The power to question is the basis of all human progress." With that, very good evening, everyone. I am Sanskar Sihoria, currently pursuing Political Science Honours, third year from Dayal Singh College. And today I am going to talk on Sri Lanka, a struggling island, Sri Lanka. Now, before going to details, let's look at the objectives for the talk. When you see the objectives of the talk, you will see that firstly I'll be discussing Sri Lanka since independence. That what are the major changes that had happened in Sri Lanka since 1948. After that, we will talk about the Rajapakshas, the most powerful political dynasty of Sri Lanka till independ till 2022, and especially in the first 2 decades of 21st century. Then we will be shifting our focus towards the great economic crisis and what are the major factors that have led to such a great crisis of Sri Lanka. After that, I will analyze the India-Sri Lanka relationship and how relationships has evolved since Sri Lanka's independence and what help India can provide to Sri Lanka, especially in the lights of present South Asian dynamics. At last, I'll be talking about the way forwards and what stands ahead for Sri Lanka. What are the reforms that they can initiate for the revival of their economy? Also, I will talk about the lessons for other countries from the Sri Lankan crisis. Now, starting with now, if you see India's neighborhood, then you will find that India's neighborhood is not an easy thing to handle right now. You will find that every country has its own internal problems. You take Afghanistan, it is having its own internal crisis of Taliban rule. You take Pakistan, which is slowly heading towards Sri Lanka's way. You take Nepal, having its own political instability. Bangladesh having communal rights and all. Even Myanmar is struggling and suffering with junta rule or say army rule. And Sri Lanka, the whole section is about Sri Lanka only. So to discuss in more in details about Sri Lanka, the beautiful island in the Indian Ocean, also sometimes referred as a pearl of Indian Ocean. Sri Lanka is famous for many things. It is famous for beautiful landscapes, amazing wildlife, pleasant weather condition, and also a very rich heritage and culture. And all these things makes it a very good tourist Sujit destination. sir, mute yourself. Sujit sir. And all these things makes it a very good tourist destination. Coming from royal dynasties and going through colonial rule, Sri Lanka finally got its independence and republic status in the 21st century. पर किसी के आज को जानने से पहले हमें उसका कल समझना बहुत जरूरी होता है. So talking about Sri Lanka, Ceylon, which is formerly called as, got its independence from Britain in 1948, that is on 4th February, and became a member of Commonwealth of Nations. But वहां पर श्रीलंका की अभी रिपब्लिक तक की दूरी अभी दूर थी. When you talk of the first constitution of Sri Lanka, it provided three major features. That is bicameral legislature, prime minister and its cabinet, and a very interesting thing to note here is that was the post of governor general, and that governor general was used to be the head of the state and actually a representative of British monarch. So Sri Lanka was democratic, but अभी तक श्रीलंका रिपब्लिक और से कंप्लीटली सोवरेन नहीं बना था, उसकी दूरी अभी दूर थी. जैसे ही पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं श्रीलंका के अंदर, वहां पे यूनाइटेड नेशनल पार्टी यूएनपी इलेक्शन जीतती है और ड्यूडले सेनानायक श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं. बट उसी के साथ कुछ हमें एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है. श्रीलंका के साथ एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलता है. एक ऐसा कॉन्सेंसस बनाया जाता है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो एक्चुअली फेवर करता है कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल को, दैट इज द इंग्लिश ओरिएंटेड पीपल, जिनके बेसिस पे पूरा पूरा सिस्टम फॉर्म होता है वहां पर. और यही सबसे बड़ा इल्जाम जो लगाया जाता है गवर्नमेंट पर कि दे आर एक्चुअली नेग्लेक्टिंग द रिलीजन, लोकल कल्चर एंड लोकल ट्रेडिशंस. और यहाँ पर वही मेन कैटलिस्ट बनता है टुवर्ड्स द रिवाइवलिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट मूवमेंट. और वो रिवाइवलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट मूवमेंट राइज देता है सिनालीज नेशनलिज्म को. और सिनालीज नेशनलिज्म को अपना स्पोक्स पर्सन मिलता है सोलेमन बेंद्रनाइक में. सोलेमन बेंद्रनाइक जो कि 1956 में अपना पहला इलेक्शन जीत के आते हैं और उनकी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी एसएलएफपी पावर में आती है. जैसी एसएलएफपी पावर में आती है वहां बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. फर्स्ट थिंग कि एसएलएफपी वाज कंप्लीटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स सिन्हालीज एंड दे show their indications with the first bill that they represented, that represented was the Sinhala only bill.
सिन्हाला ओनली बिल जो कि एक मेजर एरिया बनता है बिटवीन टेंशन बिटवीन तमिल एंड द सिन्हाला पीपल। सिन्हाला ओनली बिल जो कि सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देता है श्रीलंका की। साथ साथ ऐसी भी बातें होती है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली सिन्हाली कल्चर को, बुद्धिस्ट कल्चर को प्रमोट करने की हर एक संभव कोशिश करेगी। गवर्नमेंट की लैंग्वेज पॉलिसी की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी भी तमिल्स को बहुत हद तक एलिनेट करने पर मजबूर कर देती है, और तमिल्स जो कि एक ऐसा सहारा ढूंढ रहे थे, उनको वो सहारा मिलता है यूएनपी में, यूनाइटेड नेशनल पार्टी में। यूनाइटेड नेशनल पार्टी तमिल्स के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर चलाती है, और वहां पर वो पूरी टक्कर देती है बेंद्रा नाइक की सरकार को। और ये सारी चीजें मिलकर एक ग्रेट इवेंट की तरफ जाती हैं। द इवेंट which was actually a setback for the national movement, assassination of Bendra Naik. Solomon Bendra Naik was assassinated by people in 1959. और जैसे ही सोलमन बेंद्रा नाइक का assassination होता है, नेशनल मूवमेंट को झटका लगता ही है, बट साथ साथ श्रीलंका में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पैदा हो जाती है। और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होती है 1960 में, जब सोलोमन बेंद्रा नाइक की विडो श्रीमावो बेंद्रा नाइक संभालती हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। श्रीमावो बेंद्रा नाइक जो कि बिलोंग करती है थर्ड वर्ल्ड एरिया की छोटी सी कंट्री श्रीलंका से, बट शी सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट दैट टाइम। शी वाज elected to the post of prime minister, and she made a record that she was the first woman in the world to hold the office of prime minister at that time. That was a big thing in itself. Similarly, like his husband, Srimao Bendranaik continued the policy of Sinhali's appeasement and Sinhali's policies. She was also persuaded by the Buddhists, एंड उन्होंने सारी कोशिश करी कि जो क्रिश्चियन मिशंस जो चल रहे थे उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनको वो दूर करना चालू करें। उन्होंने प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज करना चालू करा, और जिन स्कूल्स को नेशनलाइज नहीं कर पाई, उन स्कूल्स की उन्होंने सब्सिडीज कट करना चालू करी। तो ये सारी की सारी अच्छी चल रही थी, बट फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज होता है, जो रिलीजन होता है, उसका जो महत्व है श्रीलंकन पॉलिटिक्स में वो कम होना चालू होता है। बाय 1965 वी सॉ दैट इकोनॉमिक क्राइसिस वाज राइजिंग, और लोगों का जो पूरा फोकस था जो कि रिलीजन और लैंग्वेज के ऊपर चला हुआ था, वो फोकस शिफ्ट होता है इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस के मेजर रीजन रहते हैं इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, एंड ऑल्सो अ फेलियर ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस। और ये सारी की सारी चीजें एक अपॉर्चुनिटी बनती हैं वापस यूएनपी के लिए। यूनाइटेड नेशनल पार्टी अपने आप को फिर से रिऑर्गेनाइज करती है, और विद द हेल्प ऑफ माइनॉरिटीज इट कम बैक टू द पावर। In 1965, again under the leadership of Dudley Senanaik, United National Party comes to the power. अब यहाँ पे एक अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें यूएनपी के सेनानाइक का या फिर एसएलएफपी के बेंद्रा नाइक का, तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने को आती है, ये कि अगर हम बेंद्रा नाइक की बात करें तो बहुत ज्यादा इंक्लाइन थे स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमी की तरफ, एक सेंट्रल इकोनॉमी की तरफ, जो क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते थे, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की तरफ। वहीं पे अगर हम सेनानाइक की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंक्लाइन थे प्राइवेटाइजेशन की तरफ, एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरफ उनका इंक्लिनेशन था। दो अगर हम वैसे देखें तो सेनानाइक को इससे सक्सेस भी मिला, एक मॉडरेट सक्सेस भी उस टाइम पे मिला, बट उस मॉडरेट सक्सेस के साथ साथ कुछ लूप होल्स भी निकले। इन्फ्लेशन बढ़ा और साथ साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ी, और ये इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी एसएलएफपी ने, जहां पे उन्होंने अलायंस बनाया मार्क्सिस्ट पार्टीज के साथ, और एक कैंपेन चलाया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड अगेन इन 1970 दे केम बैक टू द पावर, एंड वंस अगेन श्रीमावो बेंद्रा नाइक वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीमावो बेंद्रा नाइक फिर से अपनी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, और इस टाइम उनके थोड़े से मेजर्स सोशल इनइक्वालिटी खत्म करने की तरफ भी थे। In 1972, they enacted a new constitution, and the new constitution provided that Ceylon was turned into Republic of Sri Lanka, bicameral legislature was turned into unicameral legislature, and the major one was that Governor General was replaced by a president as the head of the state. And so now Sri Lanka was democratic as well as republic. But जो मेजर प्रॉब्लम श्रीलंका की रही है, दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस, वो अभी भी चल रही थी। इकोनॉमिक डिक्लाइन श्रीलंका का चलता गया, एंड बाय 1977 unemployment rate was about 15% in Sri Lanka. In that year, SLFP suffered a defeat. In 1977, SLFP suffered a defeat by UNP, and this time UNP won elections under a new leadership of J.R. Jayawardena. J.R. Jayawardena comes to the power, and with coming to the power, J.R. Jayawardena promulgated a new constitution in 1978. And that constitution provided that a president who was actually head of the state was actually given some executive power as the head of the government. So Sri Lanka, from a bit of parliamentary form of government, shifting towards a presidential form of government, or say a semi-presidential form of government. In 1970, with 1978 constitution, J.R. Jayawardena became the first president under the new constitution, and Rana Singh Premdasa was his prime minister.
पर जैसे 1980 दशक आता है, वहां पे पॉलिटिकल टेंशन श्रीलंका में और बढ़ती है, और इस टाइम पॉलिटिकल टेंशन का कारण होता है तमिल और सिन्हालीस के बीच का कन्फ्लिक्ट। तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि बहुत ज्यादा राइज कर रहे थे उस टाइम पर, उनमें से एक ग्रुप था LTTE, दैट इज लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, जो कि तमिल व्यू पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहा था, बट साथ साथ वो एक रेडिकल ग्रुप भी था। On 23rd of July in 1983, LTTE planted a bomb under a military patrol, और वहां से स्टार्ट होता है द ब्लैक जुलाई इंसिडेंट, जिसने एक ऐसे दौर की शुरुआत करी श्रीलंकन हिस्ट्री में, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े सिविल वॉर में तब्दील होता है। टू टेक रिवेंज on Tamils, Senali's mob attacked and searched the targets of Tamils. All that event, through the whole week, there was incidents of burning, looting, killing, and even rape took place in the country. But the whole incident ended on 30th July of the same year, after the arrest of few political leaders and the left-wing parties. Though the incident was over, but LTT was still there. LTT was not defeated and not down as well. LTT, under the leadership of Venupalai Prabhakaran, rose there. They gathered Tamils in their favor, and Prabhakaran wanted to establish an independent Tamil state, that is the Tamil element in the north and the eastern side of Sri Lanka. जो इवेंट उन्होंने स्टार्ट करा था जैसे नॉर्दर्न साइड और ईस्टर्न साइड ऑफ श्रीलंका के, वो इवेंट धीरे धीरे बाकी साइड्स में फैलना भी चालू हुआ। और पर एलटीटी के जो एक चीज उनके फेवर में नहीं गई, वो था उनका रेडिकल अप्रोच, वो थी उनकी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस। इन्हीं इनह्यूमन प्रैक्टिसेस की वजह से एलटीटी को काफी सारी कंट्रीज ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक घोषित कर दिया था। बट यहाँ पे एक कंट्री का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा देखने लायक है, दैट इज इंडिया इन्वॉल्वमेंट इन श्रीलंका। इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो हम सब जानते हैं, उस टाइम पर ऑन 29 जुलाई 1987 एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति JR जयवर्धना के बीच में। और वो एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट वाज एक्चुअली अबाउट एंडिंग सिविल वॉर इन श्रीलंका। वहां पे बहुत सारी फीचर्स होते हैं उस एग्रीमेंट के, बट द मेजर वंस वाज दैट श्रीलंका एग्रीड टू गिव सम पावर टू द प्रोविंसेस। Next one was that Sri Lankan army decided that it would withdraw from the Tamil areas. Also, LTT decided that it would surrender their arms. And for surrendering their arms, IPKF was implanted in Sri Lanka. IPKF, that was India Peacekeeping Force. India Peacekeeping Force का काम मेजरली था कि LTT का सरेंडर देखना. But what we saw, they ended up fighting LTT only. As a result, IPKF was withdrawn from Sri Lanka in 1990. But उसके साथ इंडिया को एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। अब तक जो चिंगारी थी वो शायद आग में तब्दील हो चुकी थी, और एलटीटी अपने बदले के लिए बहुत हद तक तैयार था। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है बाय एलटीटी सुसाइड बॉम्बर, जो कि बहुत बड़ा झटका था उस टाइम पे इंडिया के लिए। बट टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, इन 2005 श्रीलंका महिंद्रा राजपक्षे टुक पावर, एंड महिंद्रा राजपक्षे जिनका स्टार्टिंग से स्टांस बहुत क्लियर था अगेंस्ट एलटीटी, दैट ही वांट्स टू फिनिश एलटीटी। महिंद्रा राजपक्षे ने ऑल आउट अटैक चालू कर दिया अगेंस्ट द एलटीटी। बट वहां पर जैसे कि हम देखते हैं कि वो अटैक तो चालू हुआ, बट साथ अटैक ने बहुत एक ऐसा बड़ा सिविल वॉर को जन्म दिया, जो सिविल वॉर ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी श्रीलंका के ऊपर बहुत ज्यादा असर करा उसका। एलटीटी के लीडर्स को सबको मार दिया गया, इवन प्रभाकरन वाज किल्ड। और जैसे ही प्रभाकरन की डेथ हो जाती है, एलटीटी सीज टू एग्जिस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तब तक हमने जितना कुछ श्रीलंकन हिस्ट्री के बारे में देखा है, एक चीज बहुत हद तक विजिबल रही है और एक चीज बहुत ज्यादा नोट करने वाली रही है, वो ये कि श्रीलंका की हिस्ट्री में हमेशा समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे, चाहे आप राइज एंड फॉल ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें, चाहे आप न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, चाहे आप सिविल वॉर्स की बात करें, जिसने श्रीलंका के प्रोग्रेस को कहीं हद तक हिंडर करा है। श्रीलंका थोड़ा आगे भगता था, कुछ हो जाता था तो श्रीलंका वापस पीछे आता था। तो ये श्रीलंका का जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस है, वो शायद इतने हद तक हो नहीं पाया। As I talked about Mahinda Rajapaksa, so let's shift our focus toward the Rajapaksas, the most powerful political dynasty of Sri Lanka, especially in the first two decades of 21st century. अगर हम श्रीलंका की हिस्ट्री की बात करें पहले 2 दशकों में 21वीं सदी के, तो बहुत हद तक राजपाक्षास की ही हिस्ट्री रही है। राजपाक्षास जो कि रूरल लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका अगर हम प्री इंडिपेंडेंस डे से देखें श्रीलंका के, तो उनके एंसेस्टर्स पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे। और ऐसा देखा गया कि श्रीलंका के अंदर बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट फैमिलीज पॉलिटिक्स के अंदर रही हैं। चाहे आप बेंदर नाइक्स की बात करें, जिन्होंने 3 प्रधानमंत्री और 1 राष्ट्रपति निकाले हैं, बट बेंदर नाइक्स ने नेशनल सीन्स को बहुत ज्यादा डोमिनेट करा था। वहीं राजपाक्षा थोड़े से डिफरेंट थे, उन्होंने रूरल साइड्स पे डोमिनेट चालू करा, स्पेशली फ्रॉम द सदर्न साइड, द बुद्धिस्ट हार्टलैंड ऑफ श्रीलंका।
रूरल साइड से राइज होकर Rajapaksa's नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंचे. Talking about their family patriarch Don Elvin Rajapaksa, so he was also a lawmaker in 1950s and 60s, and also co-founder of SLFP, the Sri Lanka Federal Party. And similarly, his sons follows the footstep. His son Chamil, Mahindra, Gotabaya all followed his footstep. But it was Mahindra Rajapaksa who was there. Mahindra Rajapaksa was so determined and powerful that he helped his family cement its position. महिंद्रा राजपक्षा की अगर हम पावर की राइज की बात करें तो 2004 के अंदर उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करा जाता है बाय चंद्रिका कुमारतुंगा. और चंद्रिका कुमारतुंगा वापस बाद में इस डिसीजन को रिग्रेट भी करती हैं कि शायद वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, पर शायद जब तक बहुत देर हो चुकी थी. Once he got the power, Mahinda was unstoppable. He was elected as the president in 2005, and then there was no looking back for a family. As I mentioned, they launched the all-out attack on LTT, and their important role was played by his brother Gotabaya Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa, जो कि उस टाइम पे महिंद्रा राजपक्षा के डिफेंस सेक्रेटरी भी थे, और उनका बहुत बड़ा रोल रहा था एलटीटी के एलिमिनेशन में. जैसे एलटीटी का एलिमिनेशन होता है, जैसी एलटीटी खत्म हो जाता है, तो जो टाइगर्स के ऊपर जो विक्ट्री थी उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करा था ग्रिप राजपक्षा की श्रीलंका के ऊपर. और साउथ के अंदर हम लोगों को देखें, साउथ श्रीलंका के अंदर स्पेशली बुद्धिस्ट पार्ट के अंदर, तो लोगों ने महिंद्रा राजपक्षा और गोताबया राजपक्षा को एक गॉड लाइक फिगर तक मान लिया था कि ये लोग भगवान है, इन्होंने हमें आतंकवादियों से बचाया, बिकॉज दे रेफर्ड एंटिटी एज टेररिस्ट. और वहां से एज एक्सपेक्टेड गोताबया राजपक्षा वन द सेकंड टर्म एज अ प्रेसिडेंट. और वहां पर ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये चेंज लाया कि जो 2 टर्म की जो बार की जो लिमिट थी उसके प्रेसिडेंसी के ऊपर, वो उन्होंने हटा दी, बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड बी अ प्रेसिडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. बट he took his voters for granted. The tables turned upside down, and in 2015, Mahinda Rajapaksa lost election. But उनके इलेक्शन की हार के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि उनके खुद के कलीग मैत्रीपाला श्रीसेना ने हाथ मिला लिया था विरोधी दल के नेता रनिल विक्रमसिंघे के साथ. और वहां पर ही थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ राजापाक्सास का. बट राजापाक्सास were defeated, not down. They again make a comeback and they bided their time. They launched Sri Lanka People's Front in 2016, and as expected, they appealed to the majority Sinhala Buddhist community. राजापाक्सा ने फिर से कमबैक करा लोकल इलेक्शन में इन 2018, और फिर से उनके जो पुराने कलीग श्री सेना ने अपने प्रधानमंत्री को हटा दिया और वापस अपने ओल्ड बॉस महिंद्रा राजपक्षा को नियुक्त किया प्रधानमंत्री की पोजीशन पर. एक साल बाद हम देखते हैं फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आते हैं 2019 में. अब इस टाइम एक समस्या थी कि जो महिंद्रा राजपक्षा है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो पुरानी जो विक्रमसिंघे की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो 2 टर्म की जो लिमिट थी जो महिंद्रा राजपक्षा ने हटाई थी, उन्होंने वापस रिस्टोर कर दी थी. बट this time his brother Gotabaya Rajapaksa took power in his hand. He won the presidential election, and since then he won the election on 2 major things. That is, he said that he would restore security, especially after that Easter Sunday bombing, and also he was so confident that he would take the country out of the economic slump. And we all know what happened later on. So he was ironically, he said that he would revive the country's economy, but actually he was the main reason behind the country's unprecedented crisis. अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने उस टाइम पर, तो ऐसा माना जाता है कि बसिल राजपक्षा जो कि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, चमिल राजपक्षा जो कि स्पीकर थे, तो द होल श्रीलंका वाज ऑल अबाउट राजपक्षास ओनली. अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, देयर वर अराउंड 40 राजपक्षास इन द गवर्नमेंट. 40, दैट इज अ ह्यूज नंबर. I mean, if you talk about any democratic country, so more than anything else, they were looking like they were running not a government, they were running a family business just for their own sake. But as expected, as the economic burden increased, public anger also started taking toll on Rajapakshas. पब्लिक के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं था, करेंसी नहीं थी, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था. एंड दैट टाइम द मोस्ट पॉपुलर फैमिली ऑफ श्रीलंका, राजपाक्षास, सफर्ड अ सेटबैक. लोगों के अंदर रेजिग्नेशन की बातें करना चालू हुए, गोताबया के अगेंस्ट लोग खड़े होने चालू हुए, एंड देयर वर स्लोगन्स लाइक गोता गो होम. बट गोताबया राजपक्षा, द मैन ऑफ एरोगेंस, he was there like, no, I've been elected by 6.92 billion people, why should I resign? I'm there for the rest of my term. He was so arrogant that he made his brothers resign. Mahinda resigned, Basil resigned, Chamil resigned, everyone resigned. But there was no reprieve for Rajapakshas as well. Then he brought Ranil Wickremesinghe to the scene. Ranil Wickremesinghe, he appointed him as the prime minister after Mahinda Rajapaksa, but he was also of no use. क्योंकि अभी भी जो सिचुएशन थी श्रीलंका की, वो ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी थी. There were lines in front of petrol pumps.
Government did not have any money to import fuel, did not have any money to import food, medicine, even the basic necessities, even the toilet papers. So situation, you could see what was the situation all about. And then we all saw how people stormed into the president's palace. वहां पे लोग जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं, मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं जिम के अंदर, लग्जरियस रूम्स के अंदर मजे कर रहे हैं और किचन के अंदर मजे कर रहे हैं. So more than a protest, it was looking like a picnic. कुछ लोग उधर जा रहे हैं, सिर्फ जाके सेल्फीज ले रहे हैं. So this was the condition of Sri Lanka at that time. And finally, on 13 July, Gotabaya Rajapaksa resigned from the post of president. And that marked the end to South Asia's most powerful political dynasty. ये सब देखने के बाद दिनकर साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि सदियों की ठंडी बुझी रात बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, दो राह समय के रथ पर घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है. But what actually led to such a drastic downfall of Sri Lanka? What paved way for such a lethal condition of Sri Lanka? Then, more than anyone else, I think it was more about Rajapaksha's disastrous management. यहाँ पे एक इंसिडेंट, एक स्टोरी कोट करना चाहूंगा जो कि दिलीप जयवीरा बताते हैं. दिलीप जयवीरा जो कि बहुत जानी मानी हस्ती है श्रीलंकन मीडिया के अंदर और काफी अच्छे दोस्त भी माने जाते थे गोताबया राजपक्षा के. उन्होंने एक बार डिनर पर बुलाते हैं बेसिल राजपक्षा को, द मैन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग श्रीलंकन इकोनॉमी. बट more than a dinner, it was kind of an unofficial interview, जहाँ पे बेसिल राजपक्षा के सामने वो बहुत तीखे सवाल दागते हैं. वो पूछते हैं कि क्या हमारी कंट्री एक टेरिबल क्रैश की तरफ बढ़ रही है. एंड बेसिल राजपक्षा वाज numb, who could not even answer that question. He was so loose in his answer. He said that हम यहाँ से पैसा ले लेंगे, हम वहां से पैसा ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे. But he could not give a structured answer that how he will revive his economy. I mean, he already knew that they are a debt-ridden country. The revival is so difficult, but still at that time also he did not understand economy at all. At that moment, Dilip Javira realized that it is done and dusted for Rajapakshas, and Sri Lankan economy was unstoppably running towards a financial ruin. And after that, what we saw that after several months, Sri Lanka was struggling for food, Sri Lanka was struggling for fuel, Sri Lanka was struggling for medicines, Sri Lanka was struggling for necessities. According to United Nations report, Sri Lanka is facing a dire humanitarian crisis, and many will struggle for one meal a day as well. If you were to believe a government data, then government was about $51 billion, and that is a huge amount for a country. $51 billion. That is a huge debt. Tourism sector, the sector the government was so proud of, contributes about 10% of the economy, was also has also suffered a huge setback, and the reasons are very clear. First one, COVID-19. Second one are the security reasons. After that, that Sunday Easter bombing, and the most important one was the Russia-Ukraine crisis. Russia and Ukraine, the major source of tourists for Sri Lanka, were also became a reason for Sri Lankan tourism sector decline. Inflation was out of control. The currency was not left for Sri Lanka. They could not even, as I mentioned, they could not even import toilet papers as well. But Sri Lankan economic problem did not begin with Gotabaya Rajapaksa. It was there from 1977 only. क्योंकि वहां से श्रीलंकन जो सरकारें अब तक रही हैं उनकी बहुत बुरी आदत रही है. उनकी आदत रही है कि श्रीलंकन इकोनॉमी को डेब्ट के बेसिस पर चलाने की. अब किसी और के पैसे पे आप अपना घर चलाएंगे तो कितने दिनों तक आप घर चला पाएंगे? वो काफी ज्यादा मुश्किल रहता है. ऐसे ही हाल श्रीलंका के साथ रहा. उसके साथ साथ उनकी जो कॉस्टली वेलफेयर स्कीम्स रहती हैं, नो डाउट द स्कीम्स वर रियली गुड, बट द स्कीम्स वर एक्चुअली वाइडनिंग द डेफिसिट. For any economic student, it is really understandable that if you will do some welfare schemes, if you will put the welfare schemes in the public domain, that will actually hurt the economy to some extent only. And the crisis was worsened by Russia invasion as well. We all know, as I mentioned. But we talked about any problem. It was more about Rajapakshas and the ill management and the hasty policy making of the governments, not only Rajapaksha but other governments as well. But as I mentioned about debt policy, how can we forget the role of China here? China put their devicious debt policy in Sri Lanka and wanted to have that strategic edge over Sri Lanka. They want the major reason for that they wanted to counter India in the subcontinental region, and for that they use their debt trap policy in whole subcontinental region. You can speak of Pakistan as well here. Last time when I gave my GSTS talk, that time also I mentioned that how promising the China is becoming, and how influence it is making on Sri Lanka at present. They're influencing Sri Lankan policies. We all saw that Hambantota port was given for 99 years lease to Chinese firm,
and how Port City Bill for Colombo Port was passed by the Sri Lankan Parliament at that time, which had a huge stake of China. So all these things indicate one thing, that is Chinese imperialism policy in the India's neighborhood. चाइना जो कि एक बहुत बड़ा क्रेडिटर है श्रीलंका का, अकाउंट्स फॉर अबाउट 10% ऑफ श्रीलंका फॉरेन डेट, उसको कुछ हद तक हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं. बट देयर आर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एज वेल कि श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए सिर्फ चाइना रिस्पॉन्सिबल नहीं है. फॉरेन डेट जो है वो काफी वेस्टर्न नेशंस का भी है. इफ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक, इफ यू टॉक अबाउट एशियन डेवलपमेंटल बैंक, they also account for about 13%, 9% of Sri Lanka's foreign debt. एंड वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा हद तक बड़ा स्टेक रहता है यूनाइटेड नेशंस का भी. एंड टॉक अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक, जहां पे बहुत बड़ा स्टेक है जापान का भी, जो कि अराउंड 10% श्रीलंका फॉरेन डेट को हैंडल करता है. So these are arguments and counter arguments that who is more responsible for debt-ridden Sri Lanka. But more than anyone else, it is the government, it is the hasty in-planned administration of the Sri Lankan governments, not only Gotabaya, but before that as well. Talking about in-planned administration and the policies, I can think of two major policies. First one is the fertilizer ban and the tax cut policy. जब सरकार को जरूरत थी कि वो अपने टैक्सेस बढ़ाए, अपनी डेट को चुकाए, उस टाइम पे वो लेके आते हैं टैक्स कट पॉलिसी, एंड द लार्जेस्ट टैक्स कट पॉलिसी इन द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका. अब यहाँ पे एक बात जो समझने वाली वो ये है कि गोताबया राजपक्षे को एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था. ही वाज अ डिफेंस सेक्रेटरी एंड ही वाज बिफोर दैट ही वाज सर्विंग इन आर्मी. तो वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए बहुत ज्यादा निर्भर थे अपने इकोनॉमिक एडवाइजर पीबी जयसुंदरा पर. और यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. पीबी जयसुंदरा बहुत ज्यादा ऐसी एडवाइस देते हैं जो कि उनके खुद के गोताबया राजपक्षे के खुद के मेंबर्स ने बताया कि पीवी जयसुंदरा बहुत इल प्लान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एडवाइजेस देते हैं. उनकी एडवाइजेस बहुत ज्यादा मतलब हेस्टी तरीके से बनी हुई होती हैं, और उन्हीं के एडवाइस पर वो टैक्स कट पॉलिसी भी लेके आते हैं. नॉट ओनली दिस, even the fertilizer ban, the Gotabaya Rajapaksa banned the import of fertilizers from other countries, and that was a huge setback for agriculture sector. So all these things that we discussed right now, whether you talk about debt trap, whether you talk about tax cut, whether you talk about collapse of tourism sector, or talk about Rajapaksa's mismanagement, these all things contributed to Sri Lanka's decline to less or more extent. Now going further, talking about India's role here, analyzing India-Sri Lanka relationship. For we Indians, the earliest mention of Sri Lanka dates back to the time of Ramayana, जहाँ पे एक लिटरेट बट क्रूएल राजा श्रीलंका को रूल करता था. नॉट ओनली श्रीलंका, दैट वाज सोने की लंका. बट academically speaking, then it was the advent of Buddhism that connect India to Sri Lanka. There was somewhere around 2000 years ago, Buddhism movement spread to Sri Lanka at that time. Not only Buddhism movement, but also the British rule at that time. When we were the colony of Britishers, then Britishers took the laborers from Tamil Nadu and economically integrated the northern and the eastern side of Sri Lanka to India. And those laborers settled in the north of Sri Lanka called Indian Tamils. And since then, since Sri Lanka's independence, our relationship with Sri Lanka are more focused on the Tamils issue. Whether you talk of any pact, you talk of Indira Shri Mao Pact in 1974, you talk of Shastri Shri Mao Pact in 1964, all pacts usually talk about one thing, that is to give citizenship to Indian Tamils. And at that time, but after Shri Mao and after Indira Gandhi, only at the time of Indira Gandhi, there was a president in Sri Lanka, as I mentioned, Jayawardena. Talking about Jayawardana's policy, and Jayawardena was one of those people in South Asia जो कि बहुत ज्यादा उस टाइम पे इंक्लाइन थे ग्लोबलाइजेशन की तरफ, और उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी बहुत ज्यादा शिफ्ट करी थी यूएसए की तरफ. यूएसए जो कि उस टाइम पे एक लिबरल पावर था, लिबरल इकोनॉमी था, उसकी तरफ उन्होंने पॉलिसी अपनी बहुत ज्यादा शिफ्ट करी थी. और उसी शिफ्ट की वजह से उनका जो एक कनेक्शन था इंडिया के साथ वो बहुत ज्यादा वीक होता था, क्योंकि इंडिया की इस टाइम की पॉलिसी, नो डाउट इंडिया वाज फॉलोइंग अ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बट बहुत ज्यादा पॉलिसी इंडिया की रशिया की तरफ थी इंक्लाइंड. तो वहां पे वो एक गैप आता है इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप की तरफ. और उसी टाइम पर तमिल्स का जो परसिक्यूशन रहता है, सब्जुगेशन रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है श्रीलंका के अंदर. इवन तमिलनाडु की उस टाइम की रूलिंग पार्टी AIDMK फोर्स भी करती है इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि सेंटर की गवर्नमेंट होती है, इंदिरा गांधी के टाइम की गवर्नमेंट, उनको फोर्स भी करती है कि वो जयवर्धन की सरकार से बात करें और उन्हें बोले कि इंडिया ऐसी सब चीजें सहन नहीं करेगा अपने नेबरहुड में, स्पेशली व्हेन देयर वाज अ थिंग अबाउट तमिल्स, बिकॉज तमिलनाडु वाज सो इमोशनली कनेक्ट विद द श्रीलंकन तमिल्स इन श्रीलंका. और उसी टाइम पर बहुत सारे थ्योरिस्ट और स्कॉलर्स ये इल्जाम भी लगाते हैं कि इंडिया ने अपनी रॉ विंग को यूज करा था जस्ट टू ट्रेन इंडियन रेबल्स. और इंडियन रेबल्स को ट्रेन करने के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स वो लोग बताते हैं. पहला कि जयवर्धन की सरकार को हटाया जाए, और दूसरा ताकि इंडियन रेबल्स अपना दूसरा स्टेट भी ना खड़ा कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया दो नाव पर एक साथ चलने की कोशिश कर रही है.
वो इंडियन रेबल्स को, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, वो इंडियन रेबल्स को सपोर्ट भी कर रही है, बट साथ साथ वो जबरदनी की सरकार को उधर से हटाना भी चाहती है, बट ये भी नहीं चाहती कि वो दूसरा अपना स्टेट भी खड़ा कर ले, क्योंकि उसका इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन जो आएगा वो इंडियन सदर्न लैंड पर आएगा, क्योंकि वहां पर फिर वो डिविडेंड मूवमेंट जो है शायद उसको कहीं वो राइज ना मिल जाए. But talking about now the present times, let's shift our focus from the history. Talk about the present times. तो वहां पे हम एक डॉक्ट्राइन की बात करते हैं, that is गुजराल डॉक्ट्राइन. गुजराल डॉक्ट्राइन जो कि आई के गुजराल लेके आते हैं, भारत के पूर्व विदेश मंत्री और साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री भी, वो गुजराल डॉक्ट्राइन लेके आते हैं. गुजराल डॉक्ट्राइन में ये बात होती है कैसे इंडिया अपने इमीडिएट नेबर्स की हेल्प कर सकता है, एंड विदाउट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी. मतलब कुछ भी इंडिया रिटर्न में नहीं मांगेगा, जस्ट इंडिया विल हेल्प एंड शो दैट बिग ब्रदर अप्रोच टुवर्ड्स द इमीडिएट नेबर्स. और वो बिग ब्रदर अप्रोच के साथ साथ ये भी माना गया था कि उस टाइम पे कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के लोकल इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब दे विल मेंटेन देयर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एट दैट टाइम. और सिमिलर लाइंस पर आज के टाइम के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पॉलिसी लेके आते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दैट वाज इन 2014. और उसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत उन्होंने इस अभी भी कुछ श्रीलंका की जो हमने मदद करी उसी के तहत करी है कि लाइंस ऑफ क्रेडिट दिए गए, सब्सिडाइज रेट पर आइटम्स दिए गए लाइक द फूड, फ्यूल एंड द गैस थिंग्स एंड ऑल. उसके साथ साथ करेंसी स्वाइप तक कराया गया. और नॉट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, even the Tamil Nadu government, the state government helped Sri Lanka in this time. But one thing is to note while helping India is that, talking about the South Asian dynamics, as I mentioned, then a very interesting thing to note here is that South Asia is all about a bilateral race between two major countries. First one is China, second one is India. China trying its very best, to contain India in the South Asian region. They are trying its very best to contain India in this region. Pakistan is inclined very much towards China. Sri Lanka, during the time of Rajapaksas, very much inclined towards China, and they are also trying the best with the Nepal as well. And as mentioned by C. Raja Mohan, a great foreign policy expert, he said that without enduring primacy in one's own neighborhood, no country can become a credible power on the global stage. And it's very true as well. अगर इंडिया को एक क्रेडिबल पावर बनना है ग्लोबल स्टेज पे, अगर इंडिया चाहता है कि उसका दबदबा बने ग्लोबल स्टेज पर, तो उसको पहले अपने नेबरहुड के अंदर वो चीज दिखानी पड़ेगी. उसके नेबरहुड के अंदर उसको लोगों को जोड़ के रखना पड़ेगा और उनको एक दिखाना पड़ेगा कि हाँ, इंडिया इज हेयर टू हेल्प यू. बट साथ साथ इंडिया इज हेयर टू हेल्प यू के साथ साथ उन्हें एक और एश्योरेंस देना पड़ेगा कि इंडिया इज नॉट अ थ्रेट टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स. हम सब ने एक चीज क्या पढ़ा है, दैट इज मत्स्य न्याय. मत्स्य न्याय हम सब जानते हैं, बिगर फिश ईट्स द स्मॉलर फिश. तो जो मत्स्य न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में रहता है कि अगर हम इंगेज करेंगे एक बड़ी पावरफुल कंट्री के साथ, एक बड़ी कंट्री के साथ, तो कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर वो कंट्री हमें ट्रैप कर ले, जो कि बहुत ज्यादा देखा जाता है बड़ी पावरफुल कंट्रीज के साथ. लाइक इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, टॉक अबाउट चाइना, यू कैन टॉक अबाउट एनी बिगर कंट्री. बट इंडिया को एश्योरेंस देना पड़ेगा अपने नेबरहुड को कि इंडिया इज नॉट हेयर टू थ्रेट देम. इंडिया इज हेयर टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी. इंडिया इज हेयर टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे इंडिया एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ. एक इकोनॉमिकली अगर हम अपनी सारी नेबरहुड कंट्रीज को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करेंगे, अगर उनको मार्केट प्रोवाइड करेंगे, उनको उनकी मार्केट को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक्चुअली विन विन सिचुएशन रहेगी दोनों के लिए, इंडिया के लिए भी और बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी, स्पेशली इन प्रेजेंट केस श्रीलंका के लिए भी. बिकॉज इफ श्रीलंका विल गेट such a huge market, such a dynamic market like India, that would be really good for Sri Lanka as well as for India, because India would also expand its area. India will also expand its wings around the subcontinent. As David Malloon argues that economic cooperation represents the easiest sale to various constituencies within the countries of the region, and that is the case also. That is a real case, because right now economy is the thing which is driving foreign policy and which is driving every country in the world. And when I talked about cooperation, then one major regional cooperation that comes into my mind is the SAARC cooperation, South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC, no doubt, SAARC इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाया जिस हद तक उसको लाया गया था. SAARC को लाया गया था म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए, और एक सेल्फ रिलायंस जो सदर्न रीजन में रहना चाहिए था उसके लिए. बट SAARC के टाइम पे, जैसा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सार्क को हमने बना तो दिया, पर शायद हमने उसको इतनी पावर्स दी नहीं है जिससे वो हेल्प कर पाए सारी कंट्रीज को. तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि सार्क जो है, नो डाउट सार्क हैज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म. देयर इज नो अल्टरनेटिव टू सार्क एट प्रेजेंट इन द साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि अगर हम देखें कोविड-19 के टाइम पर ही आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको यूज करा था टू मीट द सार्क मेंबर स्टेट.
उस टाइम पर उन्होंने बात करी थी कैसे हमें पेंडेमिक के टाइम पर एक होना पड़ेगा, हमें कैसे एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। तो सार्क वो प्लेटफॉर्म बन सकता है जो साउथ एशिया को एक एक पावर के तौर पे खड़ा करे, एंड स्पेशली स्पेशली इंडिया, जिस इंडिया को एक बिग ब्रदर बनाए साउथ एशिया का। बट उससे पहले सारी कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट आना जरूरी है, जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट अगर नहीं आएगा तो शायद सार्क कभी इतना सक्सेसफुल बन नहीं पाएगा। इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो म्यूचुअल ट्रस्ट कभी आ ही नहीं पाया। और अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, स्पेशली इन द सेकंड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एरा, देन वो ट्रस्ट और भी ज्यादा डिग्रेड होता दिखाई दिया है। चाहे आप उसके कुछ भी रीजन ले लीजिए, चाहे हम उसके कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स ले लीजिए, या फिर आप उसके रीजन में आर्टिकल 370 का हटना ले लीजिए, बट वो ट्रस्ट और ज्यादा डिग्रेड होता गया है। नॉट ओनली दैट म्यूचुअल ट्रस्ट बट ऑल्सो बायलेटरलिज्म। साउथ एशिया के अंदर बायलेटरलिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो रीजनल कॉपरेशन की हम बात करें, एक हब की जो बात करें, वो शायद बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है वो आइडिया। क्योंकि कंट्रीज को काफी आसान लगता है कि हम एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ बायलेटरली रिलेशनशिप फॉर्म कर लेंगे, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए काफी है, हमें ज्यादा बड़े उसके अंदर जाना ही नहीं। अगर उनको बायलेटरल तरीके से ही सब कुछ मिल रहा है तो मेरे को नहीं लगता कोई कंट्री एक बड़े रीजनल कॉपरेशन का पार्ट भी होना चाहिए। बट हियर SAARC needed to allow that diplomacy and cooperation in the region, because I think SAARC has that ability, South has the ability to counter China as well. अगर SAARC डेवलप होता है एक बड़े रीजनल कॉपरेशन के अंदर, तो चाइना का जो रोल रहता है, जो वो डेट ट्रैप जो यूज करते हैं, शायद उसको भी काउंटर करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, एंड कंट्रीज कैन बिकम सेल्फ सस्टेनेबल इन द साउथ एशियन रीजन. Now going ahead, last topic of my talk, that is way forwards, shifting our focus back to Sri Lanka. Having discussed the struggling story of Sri Lanka, now it's a big challenge for Sri Lanka. It's a big challenge for Ranil Wickremesinghe, the new president of Sri Lanka. अगर कोई भी सिचुएशन होती तो आप 6 बार के रहे प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे पर आप हर कोई दाव लगाने के तैयार रहता कि यहाँ ही इज द पर्सन हु कैन रिवाइव द इकोनॉमी। बट पिछले कुछ समय में रनिल विक्रमसिंघे के दिन शायद राजनीति में उतने अच्छे नहीं रहे हैं। 2019 का इलेक्शन हारने के बाद और साथ साथ अपनी पार्टी का लोन मेंबर होने के बाद पार्लियामेंट में उनके लिए शायद कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। सबसे पहले रनिल विक्रमसिंघे के पास एक बहुत बड़ा टास्क है, अ टास्क टू रिवाइव द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन हिम। क्योंकि लोग, नो डाउट रनिल विक्रमसिंघे अभी बन चुके हैं राष्ट्रपति, बट लोगों का अभी भी मत यही है कि रनिल विक्रमसिंघे भी शायद उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, एंड देयर आर स्टिल द वॉइसेस आर लाउडर फॉर हिज रेजिग्नेशन एज वेल. But Sri Lanka does not have any option other than Ranil Wickremesinghe right now. So what reforms he can present right now? 4 reforms comes into my mind. First one is negotiations with IMF. IMF can play a very big role here. This will actually help in increasing the taxes and utility to raise much needed government revenue. IMF का रोल, नो डाउट IMF बनाई इसलिए था कि ताकि वो कंट्रीज की हेल्प करे, स्पेशली डेवलपमेंटल प्रोसेस में कंट्रीज की हेल्प करे. So now it is the time for Sri Lanka to negotiate good with IMF and revive its economy. Another one is taking help from the friendly nations like India. India is there to help Sri Lanka. India has clearly mentioned that India is there to help Sri Lanka, but for that India need to provide that assurance to Sri Lanka that yes, India is here and it can provide any kind of help to Sri Lanka. Third one is some structural changes, economic changes. That is, Sri Lankan economy needs to move, towards a business-friendly economy, not a government-centric economy. That will provide them a greater opportunity to, compete with the other countries in the world. Last, but the most important one is a, political system. That is a change in political system. We all know that how Gotabaya Rajapaksa used his power, used his presidential power, जो राजा टाइप फीलिंग जो उनको आई थी राष्ट्रपति बनने के बाद, एक डिक्टेटर बनने के बाद, उसको कम करना जरूरी है, और वहां पे प्रेसिडेंट की पावर को कम करना जरूरी है. रनिल विक्रमसिंघे ने 2-3 दिन पहले इस बात का जिक्र भी कर रहा था कि दे आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर सम अमेंडमेंट्स जिसके अंदर वो प्रेसिडेंट की पावर को कुछ हद तक कम भी करें, ताकि जो प्रेसिडेंट की जो पावर है, जो एकदम अनस्टॉपेबली जो प्रेसिडेंट एक राजा बन जाता है कंट्री का, वो फिर से कंट्री के अंदर दोहराया ना जाए. टॉकिंग अबाउट द लेसन्स फॉर अदर कंट्रीज, तो 2 सबसे बड़े लेसन निकल के आते हैं. बोथ लेसन्स आर इंटरकनेक्टेड. फर्स्ट वन इज द लेसन ऑफ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एंड सेकंड वन इज शिफ्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टू जियो इकोनॉमिक. सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रीज को ये समझना पड़ेगा कि आप डेट के बेसिस पर अपनी कंट्री की इकोनॉमी नहीं चला सकते हमेशा. यू हैव टू बी सेल्फ सस्टेनेबल, क्योंकि कभी भी क्राइसिस आ सकता है. कोविड-19 किसी को कहकर नहीं आया था, या फिर कोविड-19 किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कोई क्राइसिस आएगा, इसके अंदर 2 साल तक ऑलमोस्ट सारी की सारी इकोनॉमी एक जगह पे रखी रह जाएगी. किसी ने नहीं सोचा होगा. ऐसी सिचुएशंस के लिए कंट्री को अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा. स्पेशली द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड नीड्स टू शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टू जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड. Because economy is that driving force which is running a world right now. So instead of going in strategic political dialogues, strategic political relationship, they need to go for strategic economic relationship, and the country which can provide them a
economically benefit, but also the assurance that it is there to help, not to threaten them. I think we all have I think we all have to agree that the present condition is not something that Sri Lanka would endorse. They need to do so much for their country to revive, but still there's a hope. And the hope and जब तक वहां पर होप है तब तक शायद वो लोग भी चाहेंगे कि उनकी कंट्री अच्छे से अच्छे रिवाइव हो और अच्छी अच्छी इकोनॉमी की तरफ वापस से बढ़े. Just to boost up the morale of Sri Lankan people, I would like to conclude by saying few lines that रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. Thank you so much for listening.